Hello everyone. As you know that I am doing strength of material, previous year questions from GATE, IAS and IAS examinations. Okay, so this is for mechanical engineering and obviously for the civil engineering students. Okay, I am dealing with topic now, bending moment and shear force diagram. Okay, I think I have already completed many parts for this chapter. Okay, we'll see how many chapters will be there. Okay, so this is about myself. Okay, I did master from IIT Bombay and I'm the former assistant professor from the mechanical engineering department. Apart from that, I have also taught in foreign university. Okay, so let's see some more questions from the bending moment and shear force diagram. Okay, so we can see here this is the match list. We have to match with this with these options. Okay, we'll see that. Okay, see, this is like E is matching with the 4. Okay, B is matching with 2. We have to match with the shear force. Okay, shear force diagram. C is matching with third one, and this is D is matching with the fifth one. Okay, the answer is D. देखिए, मैं यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करके नहीं बता सकता हूँ. मैं सोम का जब कराऊंगा कंप्लीट लेक्चर सीरीज, वहाँ पे हम लोग सारे केसेस देखेंगे. ऑल द लोडिंग कंडीशन विल सी देयर and we'll try to draw the SMT and BMD for all type of loading. So once you able to do that, these type of question will be piece of cake for you. Okay, so as of now you remember like what is the SFD for this type of, for these loadings. Next question. Okay, it's like there's a point of contrafracture. A point along the line of beam subjected to load where bending moment changes its sign is known as the point of inflection, maximum stress, zero shear force, contrafracture. Obviously you are dealing with the contrafracture, so the answer will be D. Okay, so it is nothing but is the contrafracture. Okay, so a point along the length of a beam subjected to load where the bending moment changes in sign. Please remember this line. जब भी bending moment sign change करता है, उस particular point को point of contrafracture बोलते हैं. Okay, या इसका क्वेश्चन देखिए, आप लोग को कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये IAS में कभी आता ही नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है. मैं कई बार अपने पिछले वीडियोस में बताता हूँ, जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा, बट दोज हु आर न्यू व्यूअर, फॉर देम आई विल टेल यू. दो टिल 2010, ठीक है, जो UPSC का एग्ज़ाम होता था उसमें प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल चूज़ करना होता था. ठीक है, आप किस सब्जेक्ट से प्रीलिम्स लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे मैकेनिकल भी होता था. जैसे अभी मेंस में ऑप्शनल होते हैं, उसी तरीके से प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल्स होते थे. तो उस टाइम पे टिल दैट डे पीपल वर टेकिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल. तो उस टाइम तक 2010, आपको 2010 के बाद का नहीं मिलेगा. 2010 तक के जो भी क्वेश्चंस IAS प्रीलिम्स में आते थे, वो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ. 2010 के बाद प्रीलिम्स में ख़त्म हो गया ऑप्शनल. ठीक है, आपको मेंस में अभी भी है. तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो 2010 तक वाले हैं. So that's why I have taken. I have mentioned GATE, IAS and IAS. Okay, so don't think like ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहीं पागल तो नहीं ना हो गया टीचर. बट ऐसा नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ. I know that. So that's why this is for them who don't know. Okay, there was question, and I will tell you one more thing. The IAS question is actually very important. आपको GATE में और इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा रिपीट होते हुए. स्पेशली स्टेट के जो इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स होते हैं
वहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन आपको रिपीटेड में मिल जाएंगे. आई हैव सीन लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रिपीटेड. ओके, so this is nothing but is the D option. Assertion reason, in a loading beam, if the shear force diagram is a straight line parallel to the beam axis, then the bending moment is a straight line inclined to the beam axis. Okay, देखिए IS में कितना खतरनाक स्टेटमेंट देता है. When shear force at any section of beam is 0 or changes sign, the bending moment at that section is maximum. देखिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, और वही जो उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ काउंटरफैक्चर बोलते हैं, उस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, मैक्सिमम होता है. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज in a loading beam, if a shear force diagram is a straight line, ठीक है, is parallel to the beam axis, the bending moment of a straight line is inclined to the beam axis. Yes, this is also correct. ठीक है, but this is not a correct explanation. ठीक है, ये shear force की बात कर रहा है, ये bending moment की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों का कोई लिंक नहीं है. दोनों individually these statements are correct. So that's why the answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है. ओके, द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडिंग बीम इज शोन इन फॉलोइंग. द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम इज. ठीक है, अब ये चीज़ दिया हुआ है. अब इसमें हमें बेंडिंग मोमेंट बताना. देखिए कुछ नहीं, हमें इस लोडिंग कंडीशन के लिए BMD ड्रॉ करना होगा और मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी. ओके, तो देखिए ये हमारा जो लोडिंग कंडीशन है वो दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज नथिंग बट इज द BMD फॉर दिस लोडिंग. ओके, सो दिस पॉइंट देयर आस्किंग, सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट इज द 16 kN मीटर. ओके, सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है ये हमारा क्या दिया हुआ, बेंडिंग मोमेंट दिया, BMD दिया हुआ है, लोडिंग कंडीशन पूछ रहा है. ओके, द लोडिंग ऑन द बीम इज रिप्रेजेंटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. अब इसकी लोडिंग कंडीशन कौन सी है? दीज आर द 4 ऑप्शंस. ओके, देखिए इसमें इसकी जो लोडिंग कंडीशन होगी ये दिस होगी. देखिए यहाँ तक ये यहाँ पे हमारा, इसको देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इतना ये इस ऐसा वाला जो होता है, तो इट इज़ नथिंग बट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL. ठीक है, इसका इस UDL का जो होता है BMD ये होता है. अब बाकी जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसका ये होगा. आई मीन ये जो लोडिंग कंडीशन है इसकी वजह से ये वाला जो बनेगा. ओके, सो द आंसर इज D. अब देखिए मैंने बताया ना कि जब मैं अलग अलग बीम्स जितनी भी लोडिंग कंडीशन होती है उसकी जब मैं SFD BMD आपको बताऊंगा, तो ये सब क्वेश्चन आप एकदम आराम से कर लोगे. ठीक है, अभी आप बस देखो कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा. वो जब हम लोग करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. और उसमें मैं सिर्फ ऐसा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको पूरा कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ कि लोडिंग कंडीशन है, उसको पूरा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन बनाने के बाद उसका SFD बनाएंगे, फिर BMD बनाएंगे, उसकी इक्वेशंस भी ड्रॉ करेंगे, सारी चीज़ें. तो जैसे अगर मान लो एग्ज़ाम में आप मेंस दे रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी में हो और वो लोडिंग कंडीशन का सीधे बोल दिया कि SFD BMD ड्रॉ करो, तब पूरा इक्वेशन लिख के आप करोगे, उसको कर सकोगे. ठीक है, सो द आंसर इज D हियर. फिर से वही हमारा लोडिंग क्या दिया हुआ है. ओके, लोडिंग कंडीशन दिया है, BMD पूछ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंटेड दैट ऑफ द लोडिंग बीम. ठीक है, तो ये दिस इज द लोडिंग कंडीशन एंड these are the BMD, so they are asking which one is the correct. ठीक है,
इसमें देखिए, इसमें जो हमारा होगा सी होगा, इस वाले में सी होगा, सो द आंसर इज सी। फिर से देखिए हमें क्या दिया है, शियर फोर्स दिया हुआ। द शियर फोर्स डायग्राम इज शोन इन द अबव ऑफ द लोड बीम द कॉरेस्पॉन्डिंग बीएमडी। ठीक है, एसएफडी दिया है, बीएमडी पूछ रहा है। ओके, सो दिस इज द एसएफडी, सो वी हैव टू चूज आउट ऑफ दीज 4। देखिए इसमें, देखिए इसका आपको थोड़ा भी अगर ना एसएफडी बीएमडी आता होगा ड्रॉ करने, तो देखिए इस वाले पार्ट का जो होगा ये हो जाएगा, इस वाले पार्ट का जो होगा वो ये हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का जो होगा वो ये हो जाएगा। ओके, सो द आंसर इज ए। ओके, क्योंकि देखिए इसमें इसका जो होगा, इसका स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और ये लीनियर है तो इसका कर्व हो जाता है, ये हमें याद रखना होता है। ओके, जो अगर एसएफडी कांस्टेंट है तो उसका लीनियर होता है, और एसएफडी अगर लीनियर है तो उसका पैराबोलिक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि ये पैराबोलिक होना चाहिए, ये भी नहीं होगी, ये पैराबोलिक होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों पैराबोलिक दे दिया है जबकि लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, बट ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है कि कांस्टेंट का लीनियर होता है, लीनियर का पैराबोलिक होता है, तो वहाँ से आप ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, सो दैट्स द आंसर इज ए। इसमें भी यहीं से गलत हो गया, फिर ये भी हमारा पैराबोलिक दिया हुआ, इट हैज़ टू बी लीनियर। यहाँ पे ये चीज़ सही है, ये दोनों लीनियर है, बट दिस इज ऑल्सो लीनियर, ये पैराबोलिक होना चाहिए। सो ओके, सो द आंसर इज ए। Next question. The bending moment diagram for a simply supported beam is a rectangular over a larger portion of the span except near the supports. Okay, so what type of load does the beam carry? A uniformly distributed symmetrical load over a large portion of the beam except near the supports, a concentrated load at the mid-span, the two identical concentrated load equidistant from the support and close to the midpoint of the beam. Two identical concentrated load equidistant from the mid-span to the and two close supports. Okay, we'll see that. The bending moment for a simply supported beam is a rectangular over a larger portion of a span except the support. What type of loading does the beam carry? देखिए ऐसे केस में क्या होगा, टू आइडेंटिकल कंसंट्रेटेड लोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिड स्पैन एंड क्लोज टू सपोर्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है, okay, so this is the end of IS questions from bending moment diagram. We'll see if there will be some more question, we'll do that. Thank you.